Assalamualaikum. Welcome back to Nadia Vlog. So today we are collect here for Go Green. Today our slogan is Go Green. So why we are celebrating here in our institute? Because nowadays is a globally environment rapidly change, and so we have to do about the plantation. We have to do about the green stuff. Like we need to cut off the plastic bags and we replace them in the good quality of the bags, and we have the team over here. So see over there the banner, and the thing is that I'm today wearing and representing the Go Green. And nowadays it's very genuine that the people are saying we don't have enough water and surroundings. So this is the suggestion: go plantation and plant the plantation during all over the season. And I would like to say thanks to Sindh government, they implanting Sarkar like a drip irrigation system and the RO plant. So I recommend all of you can do the plantation from your home and from your area. So that's it. So I think you will like my this suggestion. So no matter we don't have enough time, because in Karachi most of the people used to tanker rods or something like that. If we first take the like a RO plant, then we will get, yeah, it's a very costly, but I'm not saying individually, it's a collectively work. So Assalamu alaikum. Today we are here for Go Green. Hey guys, today we are collect here Go Green. So we are एक here. छोटी सी क्लिप बना रही हूँ, आपने बोलना है गो ग्रीन, ठीक है? Green, go green, go green, go green, go green, go green. नाजिया और फौजिया चली रही हैं। कम गोट I come from the desert. I need a cup of water. Can I create an oasis with this pop music? I want to make it all green, 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 green. I want to make it all green, 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 green. Can we take you a few minutes? Yeah, sure. Okay, could you please let us know Go Green or Grow Green? So being a doctor, can you tell us about the Go Green and Grow Green? گو گرین اور گرو گرین کا یہ مقصد ہے کہ یو ہیو ٹو گرو دا مور پلانٹس اینڈ ٹو گیو دا گڈ انوائرمنٹ ٹو یور کنٹری, ٹو یور سٹی. لٹرس نہیں پھینکیں, جتنا بھی کوشش ہو سکے جو ہے وہ گرینری کو پھیلائیں. کچرا ہوتا ہے اس کو آپ ہٹاؤ, اور جتنا ہو سکے پودے اگائیں. ٹھیک ہے. اس سے آپ کا انوائرمنٹ اچھا ہوگا. اور آپ بینگ اے ڈاکٹر کیا سجیسٹ کریں گی ریگارڈنگ گو کہ ویسے آپ کو بھی پتہ ہے کہ بینگ اے مسلم اینڈ بینگ اے ہیومن بینگ, صفائی نفس ایمان ہے. اوکے, تو صفائی کا صرف تعلق اپنی ذات سے ہے یا انوائرمنٹ کا بھی کوئی اس میں عمل دخل ہے؟ دیکھیں, جب تک آپ اپنی ذات کو بالکل نیٹ اینڈ کلین نہیں رکھیں گے, صاف نہیں رکھیں گے, تو آپ دوسروں کو کیا سجیسٹ کر سکو گے. جیسے اگر سپوز ٹو بی آئی ایم سٹنگ ان مائی کیبن, تو مجھے چاہیے کہ اس کو بھی میں, ضروری نہیں ہے کہ میں اپنے اس سے وہ ہیلپر سے صاف کرواؤں. میرا بھی کچھ فرض بنتا ہے کہ میں اس کو نیٹ اینڈ کلین رکھوں, اپنی کلینک کو صاف رکھوں, یا جہاں پہ میں جاب کرتی ہوں اس کو بھی کیا حرج ہوگا اگر اپنے گھر سے میں 2-3 پودے لا کے رکھ دوں گی اور صفائی ستھرائی کا کروں گی, یا اٹھ کر میں نے اپنے بنس چیک کروا لیے, یا اپنا وہ جا کے اسٹاف کو تھوڑا سا وہ ہیلپنگ کروا دی, سپوز ٹو بی سینیٹائزرز دے دیے یا ماسک دے دیے, یا اٹھ کر خود ہی اپنی فلورنگ کی میں نے صفائی دیکھ لی. تو
इट्स अ गो ग्रीन ही हुआ. गो ग्रीन हुआ जी. हाँ, इट्स अ गो ग्रीन का मेरे मकसद से सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ पौधे ही लगाओ. जी. सफाई इट्स अ गो ग्रीन. अच्छा, अक्सर हम देखते हैं पब्लिक एरियाज या नियर बाय जो पब्लिक पार्क्स हैं ओवर हेयर इन कराची एंड ऑल ओवर, सो वहाँ पे अक्सर लोग पार्क एंजॉय तो करते हैं लेकिन फिर वहाँ पे कचरा कूड़ा फेंक देते हैं. देखो बिल्कुल फेंक देते हो. इट्स इजी. अगर आप पार्क में जा रहे हो तो कोशिश करके आप एक तो बिन्स पड़े होते हैं. अगर बिन में आपको कोई बॉदर हो रहा है नहीं आप फेंक सकते हो, अपने साथ एक थैली ले जाएं. हाँ. चिप्स की थैली उसी थैली में डाल दें, जूस का डब्बा पीकर उसी थैली में डाल दें. फिर वही थैली भी अगर आपको बॉदर कर रही है, बिन तो इतने सारे पड़े हुए होते हैं, आप उनमें डाल दो. नहीं तो घर वापस लेकर अपने कूड़े करकट में डाल दो. ठीक है. तो डू यू रिकमेंड यू आर गोइंग टू emphasize upon the plastic bags? नो. प्लास्टिक बैग को बिल्कुल भी आप जो है वो इस्तेमाल नहीं करें. वो जो खाकी कलर्स के बैग्स होते हैं वो आप कर लो. पेपर बैग्स आप पेपर जी हाँ जी पेपर बैग कर लो. शॉपर्स नो प्लास्टिक. इवन प्लास्टिक की कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए. बॉटल्स हम फेंक देते हैं पार्क में. नहीं आप बॉटल्स नहीं फेंके. आप वही बॉटल जो है वो आप बिन में फेंक दो. और आप प्लास्टिक बैग्स का कह रहे हो. प्लास्टिक बैग्स आर वेरी वेरी डेंजरस, हार्मफुल हमारे लिए, जानवरों के लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, हमारे इतने खूबसूरत कराची के समंदर के लिए. अच्छा, जैसे पौधे होते हैं पार्क्स में या घरों में, तो अक्सर हमें कोई जगह नहीं मिलती तो हम उसका मोल बना के गमलों में भी डाल देते हैं. मोल मीन्स कि कोई भी कचरे को रैप अप करके और उसको अंदर हमने डाल दिया. और अक्सर मैंने देखा है public places where likewise in your hospitals, okay, you are a government job and right now you are doing your practicing, so ठीक है. in a private sector तो इतना नहीं होता है, लेकिन मैंने अक्सर हॉस्पिटल्स में देखा है वो अपनी स्पिटिंग फेंक रहे होते हैं. तो पौधे तो जानदार होते हैं, तो ये हार्मफुल नहीं है. देखिए ये बहुत ही हार्मफुल है. स्पिटिंग करना ये भी एक एटमॉस्फेयर को खराब करना है. पानों की पीखे फेंकना ये भी एटमॉस्फेयर को खराब करना है. ये तो एक अपना, तभी मैं कह रही हूँ यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ. जब तक मैं खुद नहीं उसको चीज़ को अपने ऊपर अंदर इंडल्ज नहीं करूँगी तो फिर मैं दूसरों को क्या कह सकूँगी. मैं अपने हॉस्पिटल्स में बोलती हूँ कि बाबा कचरा नहीं करें, स्पिटिंग नहीं फेंकें. इवन मेरे जो हेल्पर्स होते हैं घर के बाहर, उनको यही मैं कहती हूँ कि आप जो है वो अपना उसमें गार्डन में थूके ना फेंके. तो वो भी तो जानदार हैं. तो जैसे हम सांस लेते हैं वैसे पौधे भी ले रहे हैं. एग्जैक्टली. तो पौधे तो बेचारे बोल नहीं सकते, कम से कम हम बोल कर उनको मना तो कर सकते हैं. बोल के लब आजाद है तुम्हारे. बोलो कि थूक ना फेंको, बोलो कि पान की पीके ना फेंको, बोलो कि लिटर्स ना फेंको, बोलो कि बॉटल्स देखिए हम अपनी वो जो है ना खा पी कर फिर हम फेंक रहे हैं. और वो भी कहाँ पे फेंक रहे हैं कि नारा तो बहुत लगा रहे हैं गो ग्रीन प्लांटेशन करें. आपको चाहिए जब तक आप खुद नहीं स्टार्ट करोगे. आपका घर है, आपका मोहल्ला है, आपका शहर है, हमारा मुल्क पाकिस्तान इतना खूबसूरत ब्यूटीफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है. जब तक आप खुद सोचो ये हमारे हाथ है, अल्लाह ने हमें हाथ दिए तो इनसे सफाई निस्फ ईमान है. सफाई निस्फ ईमान. जब तक निस्फ ईमान नहीं होगा, सफाई करेंगे तो निस्फ ईमान होगा. ठीक है. तो आपने अपने बच्चों से स्टार्ट किया और अपने पेशेंट्स को, और उनको आपने तरजीह दी कि प्लीज आप भी जाएं कोई 20 का 25 का 100 रुपए का एक गमला लेने. जरूरी नहीं बहुत छोटा सा पौधा भी. देखिए पौधे की बात बिल्कुल ज़रूरी है. मैं ये कहती हूँ कि ये सिर्फ दिखाना हमें नहीं होता कि हम लोग एक 50 रुपए का पौधा ले लें और ये लगा लें. फिर उस पौधे बेचारी की तो ना उसको पानी देते, ना उसको कोई वो कुछ उसको न्यूट्रिशनल वैल्यूज देते, कुछ भी नहीं. सिर्फ मेहरबानी करके इतना करें कि आप अपने से ही स्टार्ट करें. आप पौधे में जो कचरा पड़ा हुआ है ना उसको आप निकाल लो. आप जो घर के दरवाजे के आगे आपका जो कचरा पड़ा हुआ है
प्लीज़ उसको 200-300 देकर किसी भी जमादार को बुलवा के वो आप कचरा निकलवा लो। आपकी वो जो गली में थोड़ा सा कचरा पड़ा हुआ है, किसी देखो बहुत सारे लेकिन हम तो गलियों के कचरों को जलाने के आदी हैं। नहीं, हमें वो नहीं जलाना, हमें तो वो हम क्यों जलाते हैं? उससे लगता है कि कचरा खत्म हो जी जाएगा। नहीं, उससे और ज़्यादा आपके पोल्यूशंस फैलती है, इनहेलेशन, और उसका आपका कार्बन डाइऑक्साइड जब आपके अंदर हो जाता है इनहेल करते हैं जी जी, वो आप जाहिर है you are inhaling the carbon dioxide within your body and it can give you a very dangerous effects on your health. तो इससे बेहतर है कि वो कचरा आप निकालो, फेंको। बहुत सारी जगह कचरा फेंकने की होती है, वहाँ पर जाके आप फेंक कर आओ। ओके, आप मेरे चैनल के तवज्जो से कोई मैसेज, पब्लिक मैसेज जो वन सेंटेंस में हो। वन सेंटेंस के प्लीज गो ग्रीन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ पौधे गमले, आप कचरा, आप जब आपका कचरा, आप कचरे को निकालोगे अपने दिमाग से निकालो, हाँ। अपने दिल से निकालो, अपने जिस्म से निकालो, आप अपने घर से निकालो। प्लीज, एक छोटा सा गमला होता है, उसमें बहुत सारी थैलियाँ जमा होती है, वो उसको सफोकेट करती है। सो काइंडली खुद नहीं करते तो किसी से करवा के आप वो कचरा प्लीज आप निकलवा सकते हो। नहीं, हम निकलवा भी खुद क्यों ना, जब हम डालते खुद हैं तो हम निकाल भी सकते हैं। आप तो खुद जरूरत होनी सोचो, चाहिए। आप खुद सोचो, इतना छोटा छोटा बच्चे जो होते हैं वो कचरा निकलवाते रहते। हम किसी को देखकर 200-300 हम अपने क्या इर्द गिर्द के माहौल से या अपने वहाँ से कचरा नहीं उठवा सकते। बिल्कुल उठा सकते हैं। एक इतना जब बच्चे से हम घर का काम करवा सकते हैं, तो अपने बड़े हम बच्चों से क्या छोटा सा कचरा नहीं साफ करवा सकते? प्लीज कंसर्न करें। थैंक यू सो मच हैविंग टाइम। टेक केयर, बाय बाय। आज हम बाकायदा आवाज़ पुराने तिलावत से करेंगे। कॉमर्स अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहुवल्लज़ी अंज़ला मिनस समाई माअन فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. ترجمہ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے ہر اگنے والی چیز نکالی، تو ہم نے اس سے نکالی سبزی جس میں سے دانے نکلتے ہیں ایک دوسرے پر چڑھتے ہوئے، اور کھجور کے تھابے سے پاس پاس کچے، اور انگور کے باغ اور زیتون اور انار کسی بات میں ملتے اور کسی بات میں الگ۔ اس کا پھل دیکھو جب پھلے، اور اس کا پکنا بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔ کہ آپ کو پلانٹس کی، شجر کی، درخت کی اہمیت پتہ چلے کہ یہ صرف دیکھنے کی چیز یا خوبصورتی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ تو ہم سب کا فرض یہ ہے کہ ہم اپنے ماحول کو خوبصورت بنائیں۔ خوبصورت کیسے بنا سکتے ہیں؟ جب ہم ان کا خیال رکھیں۔ یہ ہمیں ہوا مہیا کرتے ہیں، سایہ دیتے ہیں، اور یہ وہ اللہ کی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ ان نظاروں کو، ان پودوں کو، درختوں کو دیکھ کر ہمیں قدرت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا خوبصورت اور صحت مند چیزیں اس دنیا میں پیدا کی۔ اب ہماری پرنسپل صاحبہ محترمہ فوزیہ پروین آپ سے آج کے دن کی مناسبت سے خطاب کریں گی۔ امید ہے آپ ان کی باتوں پر عمل کریں۔ پروفیسر
मोहतरम असातिज़ा इकराम और प्यारी तालबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का दिन प्लांटेशन डे के हवाले से मनाने के लिए हम सब यहाँ पर जमा है। योम शजरकारी या प्लांटेशन डे जो है वो क्यों अहम है, इसका एहसास आपको बताने के लिए मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में नेशनल डे के तौर पर 18 अगस्त 2023 को प्लांटेशन डे रखा गया है इस साल, जबकि दुनिया में नेल्डा ऑर्गेनाइजेशन है जो 21 मार्च को सेलिब्रेट करती है प्लांटेशन डे। प्लांटेशन डे का मतलब है कि दरख्त लगाना, हरियाली को फरोग देना। Trees are very essential for human being, every living being. न सिर्फ इंसान, चरण परन पौधे, हर एक के लिए दरख्त माहौल दोस्त होते हैं। दरख्तों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, खुराक मिलती है, हमें शेल्टर मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है। देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ द ट्रीज इन आवर लाइफ। हर इंसान की जिंदगी में दरख्तों की बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसके बेनिफिट्स होते हैं। और देखिए, अर्बन सिविलाइजेशन को फरोग देने के लिए डिफॉरेस्टेशन की जा रही है, यानी कि जहाँ पर शहर आबाद किए जा रहे हैं उसका नुकसान क्या हो रहा है, दरख्त भी तेजी से काटे जा रहे हैं। सड़कें तामीर हो रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, जहाँ जहाँ उनके रास्ते में दरख्त या हरियाली आती है वो उनको काटते जा रहे हैं, जिसका नुकसान क्या होता है, वो हमारी माहौलियाती ग्लोबल वार्मिंग की तरफ चला जा रहा है। माहौल जो है वो गर्म हो रहा है, जहाँ पे शहर है वो आलूदगी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आलूदगी का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि दरख्त काटे जा रहे हैं, हरियाली को ख़त्म किया जा रहा है। कराची इज़ अ ग्लोबल वार्मिंग सिटी नाउ, दुनिया में सबसे ज़्यादा गर्म तरीन शहरों में आ गया है, वरना ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल होता था, ठंडा शहर होता था। इसके आपको पता है कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तामीरात करने के लिए दरख्त काटे जा रहे हैं। अब इस चीज़ को उन्होंने महसूस किया है, जिसकी वजह से हुकूमती सतह पर दरख्त लगाने की मुहिम का आगाज़ किया गया है, और इसी वजह से प्लांटेशन डे को अहमियत दी जा रही है। नेल्डा सजेस्ट दैट एवरी डे शुड अ प्लांटेशन डे। नेल्डा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहती है कि हर दिन प्लांटेशन डे होना चाहिए, हर दिन शजरकारी मुहिम होनी चाहिए, दरख्त उगाए जाएं। अच्छा, आपको पता है दरख्त जो है हमारी ज़िंदगी में ज़माने कदीम से अहम है। दरख्तों से हमें ना सिर्फ खुराक मिलती है, बल्कि इससे हमें पहले ज़माने में ईंधन, यानी कि लकड़ी भी यहीं से मिलती थी। दरख्तों को काट के ईंधन फराहम किया जाता था, और दरख्त को ही हमारे लिए खुराक का ज़रिया होता था। फल मिलते हैं जिससे हमें ना सिर्फ हम बल्कि जानवर, चरिंद परिंद हर के लिए ये तमाम अहम है। कुरान पाक में भी दरख्तों की शजरकारी, सूरह रहमान में भी कितनी सारी ऐसे आयत कुरान पाक में इस पे अहमियत को उजागर किया जा रहा है। पहले ज़माने में लोगों की खुराक का ज़रिया नेचर होता था, नेचुरल चीज़ें, फल, सब्जियां, फ्रूट, ये सब खाते थे। और जहाँ पर घने जंगलात होते थे वहाँ पे लाइव स्टॉक, यानी कि माल मवेशी पलते थे, और माल मवेशी होंगे जहाँ पे वो मुल्क खुशहाल तरीन होता था। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस खित्ते में, अगर आप तारीख देखें तो दुनिया में रिचेस्ट कंट्री, द मोस्ट रिचेस्ट कंट्री वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन। वादी सिंध की तहजीब को अर्बन सिविलाइजेशन का दर्जा इसलिए दिया गया कि सोने की चिड़िया माना जाता था बड़े सगीर को। Indo-Pak was supposed to be the most richest country in the whole world. Why? And that was foreigners had invaded that country because their resources, natural resources, and they captured our country. यही नेचुरल रिसोर्सेज है जिनकी वजह से बैरूनी हमलावर आए, हमारे मुल्क पे कब्जा किया और हम महकूम हो गए। हमें अपनी मुल्क की अहमियत और इसको उजागर करना है, और इसी वजह से प्लांटेशन डे की अहमियत को देखा जा रहा है। अच्छा, प्लांटेशन जो है, दरख्त जो है माहौल दोस्त होते हैं। इट वॉज ऑल्सो बेनिफिट फॉर आवर हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हमारी जहनी सेहत के लिए भी
हरा भरा माहौल, आप देखिए आंखों को कितना ठंडक का एहसास हो रहा है। तो डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं जो ज़्यादा जहनी तौर पर बीमार है, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन का शिकार है, उनसे कहते हैं कि आप पुरफ़ज़ा मकाम में अपना कुछ टाइम स्पेंड करें। इसी वजह से लोग मुख्तलिफ वादियों में, कश्मीर की वादी, स्वात की वादियों में जाते हैं ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स होकर वहाँ से आएँ। कराची कितने सारे लोग जाते हैं, विजिट करते हैं ना बेटा, बलूचिस्तान की तरफ, यहाँ पे हरियाली है, जहाँ पे सब्ज़ा है, जहाँ पे अच्छा माहौल है, वहाँ जाते हैं। तो ये क्यों ना हम अपने शहर में इस तरह का माहौल पैदा करें, गार्डन्स बनाएं, गार्डन्स हो जहाँ पे बच्चे विजिट करें, मतलब ऐसा माहौल हो जहाँ पे लोग जा सके बगैर किसी पैसे के, इन्वेस्टमेंट के। इस तरह से हमारे शहर में गार्डन्स है, मतलब इसका रेशो बहुत कम है। हमारे आसपास की जो एरिया है इसके अंदर आपको बहुत ही कम दरख्त नजर आएंगे। वजह क्या है? अर्बनाइजेशन। शहरी ज़िंदगी की वजह से हमें बहुत सारे नुकसानात का सामना करना पड़ा है। हम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहे हैं, जो उन फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है वो हमारे अंदर जा रहा है, जो हमारी सेहत पे मुज़र असरात दे रहा है। ऑक्सीजन, दरख्त जो है वो अपने अंदर जो है वो ऑक्सीजन पैदा करते हैं, वो बाहर निकालते हैं। वही ऑक्सीजन इंसानी ज़िंदगी और तमाम माहौलियात के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो हम यहाँ पे आके इस बात का अहद करें कि हम दरख्त उगाएंगे और उनकी हिफाजत करेंगे, ताकि ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी बल्कि तमाम लाइव स्टॉक, माल मवेशी, जानवर, परिंदे, सब उनकी ज़िंदगी को भी फ़ायदा हासिल हो। हम अहद करते हैं कि हम सरकारी मुआवजे में हर तौर पर हिस्सा लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया प्रिंसिपल साहिबा, आपने बहुत तफसीलन हमें आज के दिन के हवाले से ब्रीफ किया है। और ये दरख्त प्रिंसिपल साहिबा ने बिल्कुल सही कहा, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि चरिंद परिंद के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अहम है। अल्लाह ताला ने उनकी ग़िज़ा इसी में रखी है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने कॉलेज को संवार सकते हैं और यहाँ जो पौधे हैं उनकी हिफाजत करें, और अपने घरों में भी हम इस चीज़ को रिवाज दें कि हम पौधे लगाएं। अब हमारे कॉलेज में जो शजरकारी है और पौधों की देखभाल है, उसके लिए एक कमेटी बनी हुई है। उस कमेटी की 2 टीचर्स मेंबरान हैं। एक है मिस फौजिया परवीन, उनसे दरख्वास्त है कि वो तशरीफ़ लाए। और दूसरी है दीनार आज़ाद। ये हमारी जो असातिज़ा हैं ये दोनों। दूसरी टीचर है अफीफ़ा, वो आज नहीं आ सकी है। ये हमारी 2 मोहतरम असातिज़ा जो हैं वो इस कमेटी की मेंबरान हैं, और इस तमाम आज का दिन मनाना या बाकी पौधे की देखभाल इनकी जिम्मेदारी है। उनको असिस्ट करते हैं हमारी तालिबात भी शामिल है इसमें। बेटा तशरीफ़ लाइए सबा। खराब ना करें बल्कि उनकी हिफाजत करें। और बहुत ही अहम हमारे पास हमारे मेंबरान है, एक जलील साहब, और ये जलील ये दोनों कहने को तो माली है, लेकिन असल में ये बागबान है जो हमारे कॉलेज में जो पौधे हैं, हरियाली है, उसकी सारी जिम्मेदारी इनके काम को करता है। और फिर से इन पौधों का ख्याल रखेंगे, उसके लिए परवान चलेंगे। तो आप लोगों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि लोग इतनी मेहनत करते हैं, धूप में, गर्मी में, सर्दी में, आपके जो 2 गार्डन हैं इनको संवारते हैं, आप इनके साथ कोऑपरेट करें। ये ना हो कि आप घास पे कचरा फेंकें, पौधे तोड़ें, फूल तोड़ें, बल्कि आप अपने तरफ से सिर्फ आज ही नहीं किसी भी दिन कोई पौधा ला सकती हैं और यहाँ पर डोनेट कर सकेंगे। तो ये जो हमारी टीम है इनके लिए एक दफ़ा और तालियां।
کمیٹی کے ساتھ جو ہے ایک تصویر بنوانی ہے پلیز. آئیے میڈم. اور ہماری سینئر ٹیچر مس سمیرہ صبری. بیٹا آپ اس طرف سے آ جاؤ. ادھر جاؤ, ادھر جاؤ. آپ بھی جائیے, آپ بھی جاؤ. Guys, see, they are working hard in it. So these are our helper. آپ دونوں یہیں
اور یہ دیکھیں ہمارے جلیل صاحب ہیں اور یہ بہت محنت کرتے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں جی. اور اب ہم ان کو ڈائریکٹ اس میں گملوں سے نکال کر اس کو ڈائریکٹ ہم زمین میں لگائیں گے. اور یہ اکبر ہیں اور یہ دیکھیں ہی از ڈریگنگ ہول. فرسٹ ایئر کامرس سے مس کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ زوردار ویسی والی آواز. کسی کو پتہ ہے آج ہم گو گرین کیوں بول رہے ہیں؟ ہریالی کو بنانی ہے. گو کے معنی کیا ہے اور گرین کے کیا معنی ہیں؟ گو مطلب جانا, گرین مطلب ہرا. جانا ہرا. نو, گو گرین مینس یس. ویسا بیٹا اس ڈے کی آپ نے اہمیت کو سمجھنا ہے. اصل بات یہ ہے, یہ اویئرنیس اسی لیے ہی ہو رہی ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھو. صحیح ہے نا؟ آ رہا ہے آپ کو پتا ہے, انجوائے کر رہے ہیں نا, آگے بھی ایسے ہی فنکشنز ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. اچھا, گو گرین مینس کہ گرین کو تھرو کرنا ہے اوور آل. گو کا مطلب یہاں پہ وہ نہیں ہے کہ بھاگنا ہے, ٹھیک ہے؟ تو گو مینس ہر جگہ آپ نے گرین گرین کرنا ہے. ناؤ اگین سے گو گرین, گو گرین, گو گرین, گو گرین, گو گرین, گو گرین. So that we are going to participate in a rally. So that one the last section for our plantation, and today we are too much happy, and let's have a look.